Very good evening to all of you. Welcome back to yet another Toppers Talk session by GeoDestination. So today we have amongst us Sobhik Saha sir. So sir, are you there? Hello, hello Hello, hello, Alisha. hello sir. So I'll just give a brief introduction about sir. So he belongs to Siliguri in West Bengal. That's a place he belongs to. And he has graduated in geological science from Jadavpur University in the year 2021. And he has done the MSc in from IIT Kharagpur in the geological science. And so, sir has got numerical achievements to his feet, so that I'll be telling you one by one. So, the very first thing is that he has secured a remarkable rank in the GATE examination. So, All India rank 77 he has secured in GATE 2023. And again, in GATE 2024, it improved again, that is All India rank 13. So All India rank 77 in GATE 2023 and All India rank 13 in GATE 2024. So he has also qualified in the NET examination 2024, the LS in NET 2024, and again secured the All India rank 7 in the UPSC GSI examination in the geologist category. So welcome, sir, and again, many congratulations. Kudos to you for such remarkable achievements. And one thing I would like to add over here that ये उनकी second attempt थी UPSC CGSC के लिए, and in his last attempt इन्होंने stage मतलब mains के stage तक qualify किया था. So, sir, already I have introduced you about your academics and also please tell us about yourself a little bit, like आपके result के बारे में. What was your feeling and क्या आपका जो rank था, was it expected both for GATE as well as the UPSC examination? First of all, thank you for having me here. Like, thank you so much for hosting me. It's been a privilege talking to you guys. The future aspirants, they will be appearing for GATE as well as for UPSC GSI examination. So, results के बारे में तो for GATE, I actually did prepare for GATE and I was more inclined towards GATE rather than GSI at first. So, in my previous attempt also during 2023. So I was more focused toward GATE examination. So, but during the examination, little bit stress was there. So in that 2023 examination, I missed a bit. So my rank got stayed to 77, and the post effect of that GATE examination, it took upon that prelims examination also, because after 1 week only, UPSC 2023 prelims was there. As a result, in the last 2023 examination, I could write the mains examination, but as my prelims marks were not up to the mark, so I could not get through 2023 UPSC examination in the last year. But this year, I focused on both. Like I prepared for GATE as well as the UPSC examination, and in the GATE results, I expected that I will be in the top 20s, and as expected, I did a rank of All India rank 13. But in GSI examination, as it is a tedious process, yes, I just focused on the each and every stage rather than focusing on the result. I need to give the mains perfectly, like as per up to the mark, and again interview stage, and finally my it was in my mind that I had to make into top 13 because last time when recently the after result I got to know that the seats have been increased to 16 for general. Earlier it was 13 only. So in my mind it was there that I need to make to the list of 13. So after seeing the rank of 7, I was very happy, and family everyone was very happy as well. I think your microphone is not. Okay, okay. Yes. Sorry. So, sir, you have been a regular classroom student of GeoDestination, as we know, like in 2023 as well as 24. So, please share your experience about GeoDestination. How was your preparation journey?
Yeah, as I told you, like during my preparation of 2023 GATE, so initially I was enrolled in Nation, and those new subjects that came up during the GATE preparation, like geophysics, whale logging, like it was very much helpful. Like the core faculties taught me very well, and the basics of the subjects were clear. And after that, during the this year preparation of mains, as I this year I was serious about the mains. So during this year, the mains course was very nicely designed by them, like the answer structures, how to write the structures, like answer carefully, how to make the diagrams, that time management between the sections, and even the interview portion, like they covered the pre-interview guidance portion was very well designed and very meticulous. It was very nice. So I would like to share my credits to them also for their like both like very good mains and interview guidance program for the GSI examinations. I'm sorry to interrupt, but your Sorry, mic. sorry. Yeah, yeah. Okay. So today we'll be listening to like two exam strategies for two exams basically from sir. So first we'll start from GATE examination क्योंकि इन्होंने सर ने रैंक 13 अचीव किया हुआ है GATE 2024 में. So sir, please tell us about your strategy for the GATE examination and later we'll come to the geologist examination. Okay. So basically, when I started the preparation, I did not took the both exams different. Like yes, the patterns are different, but the core portion, like geology, is same, na. So why segregate the exam during preparation? During preparation, I kept in mind that I'm studying geology only, be it GSI, be it GATE. So that was my core portion during the preparation. And in later, I will share this book list and syllabus also. That's all. So that key thing I want to keep you like who are both appearing for GATE and GSI. I just want to mention that don't segregate the examination like I am appearing for GATE, I am appearing for GSI. No, no. You are appearing for both. Keep in your mind that you are appearing for a geological examination. You must be thorough with the geology concepts. That's all. There are 3 to 4 differences between the examination, like the pattern of the examination. The thing is, if you know the concept, the pattern will automatically be sorted. That's what I think. ओके सो लाइक गेट में जैसे कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है एंड जैसे कि आपने बताया कि यू यूज टू डू द कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन ऑफ बोथ गेट एंड जीएसआई. सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए लाइक क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करना होता है. सो हाउ टू डू दैट, लाइक हाउ कैन द स्टूडेंट्स फॉलो दैट, व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? Yeah, actually, in the GATE, the NAT portion is very much scoring as no negative marking is there. And if you can hit that portion correctly, you can maximize your score, first of all. So, like when starting of the preparation, yeah, for like big GATE with GSI, you have to keep two things in ready. Like you need to have PYQs, 10 to 15 years sorted PYQs, topic wise. And for like when I started my preparation, I started with GATE only initially. So I had this PYQs in one hand and the syllabus in one hand. Okay. So now I went through the syllabus that in this subject, like igneous petrology or be it metamorphic petrology, these are the subtopics there. In each subtopics, in the last previous years, what are the questions that are appearing? Okay. Now, what are the NATs that are repeating? So which topic to focus upon? Like when you will do this type of sorting, then you will hit a potential zones that these are the favorite zones you can expect question from in the NATs. So, and also one book is there. I would like to recommend that book, Mrinal Shrestha, like the numericals in JAM and GATE. That book is very handy. You can use that book also to like find out which NAT can be framed from each of the topic. Like, and after that, after knowing that, yeah, this topic will like be potentially important for NAT, so you can like frame or the extract the formula of the topic. So doing like this for each and every subject, what happens at the end of your preparation, you will come across 200 or 300 formulas, roughly 200 to 300 formulas. You jot it down in a single extra, like another copy. So you revise it regularly. What happens is that when you are thorough with the formula, you are thorough with the concepts. Now, when you are starting to apply it, when you solve the previous year's question,
you will see that you are understanding how to apply that formula to solve the questions, because a formula can be directly applied or indirectly applied. Gate will either ask you like, yeah, use this formula to deduce this, or they will frame a such type of question when you need to extract the given data, and then you need to think which formula can be applied there. So you need to be thorough with both types, independent and dependent and like independent types. And practicing it thoroughly, you will definitely overcome the net section with pretty much ease. That's what I feel. Okay, sir. So now let's come to the some important topics जो हमें गेट के लिए स्पेसिफिकली क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए फोकस करना चाहिए. So please share that Okay. those. Okay, I would like to share my screen for that. Like, it will Okay, be. sure, sir. Is my screen visible? Yes, it's visible. Yeah. So actually, I have made a syllabus. I've just sorted the syllabus and nothing else. So I will keep side by side two syllabus, दो syllabus side by side रखूंगा, और मैं कुछ कुछ important चीज जो कि गेट के लिए ज्यादातर important है, I will like focus upon that. Okay. So coming to the GATE syllabus, what happens is you will get 15 marks of aptitude first. This aptitude is like most important section in GATE. Like this will help you boost your score. 60 is from geologic section, 25 is from common section, where you can expect like questions from geophysics also. This aptitude portion you need to practice it. There is no alternative. You have आपको practice करना पड़ेगा, बहुत अच्छे practice करना पड़ेगा. So more or less, even if you score 10 plus or 12 plus, that's a very high good marks in this section. After that, ये जो common section है, इसमें मैं जो recommend करूँगा, ये बहुत important subject है, ये geophysics. बाकी you will have common with that next section also, like earth and planetary system science, ये geomorphology, structural, mineralogy. उसके बाद आपका ये resources, remote sensing engineering, but this is like common with geophysics. This section is very much important. यहाँ पे आपको बहुत सारे formulas मिलेंगे. So आपको formulas extract करना है, आपको questions देखना है, PYQs, आप कैसे solve करना है. तो this is your most important section in 25 marks. And again, in the next part B, geomorphology is common, structural is common. Geochemistry, this is a potential section you can expect NAT from. Like here you have got thermodynamics, बहुत सारे NATs आते हैं इससे. फिर ये geochemistry of water, you can expect the redox वाले questions, isotopes, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके. ट्रेस एलिमेंट्स, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के पर्सपेक्टिव से. इसके बाद geochemistry is an important one. In global tectonics also you can expect questions from plate boundaries. ट्रिपल जंक्शन का क्वेश्चंस आते हैं प्लेट वेलोसिटी एंड वगैरह डिस्क्राइब करने में. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन नेट. उसके बाद here in stratigraphy, sequence stratigraphy you need to focus upon. Directly question come from here. Again, petrology is common. In metamorphic petrology, some new topics are there in GATE, like PTT paths and the tectonic significance. These are important. And finally, resource geology, applied geology, and this remote sensing and hydro. The most net come from this part, engineering geology part. ये आपका नेट आएगा ही आएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आपका यहाँ पे. फिर और रिजर्व एस्टिमेशन से नेट आ सकते हैं. फ्लूइड इंक्लूजन एक बहुत न्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए. एंड फाइनली रिमोट सेंसिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक बट क्वेश्चंस वैसा आए नहीं, तो प्रिडिक्टेड है कि आ सकते हैं, लाइक आना चाहिए. और हाइड्रोलॉजी, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर गेट एग्जामिनेशन. Yeah. Okay.
ओके सर, सो लाइक जैसे कि आपने बताया गेट के स्ट्रैटेजी के बारे में, एंड आप साइमल्टेनियस प्रिपरेशन करते थे फॉर बोथ द एग्जाम्स, राइट, फॉर गेट हाँ। एज वेल एज जीएसआई। सो वेर यू फॉलोइंग एनी लाइक कुछ आपके शेड्यूल था, या फिर एक कॉमन टाइम टेबल था, या फिर कुछ डिफरेंट लाइक वीकली और मंथली, एनी कॉमन और डिफरेंट टाइम टेबल वाज देयर रिगार्डिंग द प्रिपरेशन पार्ट? सो लाइक शेड्यूल के अगर मैं बात करूं तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था 2024 में गेट का एग्जामिनेशन पहले था, उसके आई थिंक 1 वीक या फिर 2 वीक बाद जीएसआई का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था। तो ओके। जैसे कि मेरा फोकस फुल्ली गेट के ऊपर था, तो आई डिवोटेड मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर गेट ओनली एंड एप्टीट्यूड सेक्शन। एंड in a week I used to like check out the YouTube videos for current affairs, and जैसे मान लीजिए साइंस का कुछ वीडियोस देख लिए, उसके बाद जो डेस्टिनेशन का भी आपका ये जनरल अवेयरनेस का क्लास रहता था, कभी कभी वो कर लेते थे। तो वैसे ही वो जो जीए पोर्शन है वो थोड़ा बहुत मैंने कवर किया था। आई डिड नॉट टेक स्ट्रेस अबाउट जीए जनरल अवेयरनेस पोर्शन दैट मच। General aptitude in GATE and that geology section was only my main concern, because I thought that अगर मैं जियोलॉजी का कोर कवर कर लेता हूँ तो इसके लिए मेरा गेट के लिए यूजफुल हो जाएगा। अगेन after GATE also for GSI prelims, if I can maximize my score using the geology portion only, because 300 marks is from geology and 100 marks is from general awareness. So if I can maximize my score using the geology portion, then even if I cross the cutoff of GA, I will get through. That was my strategy for preparing for both. So what you can do, you can just cover your like geology very good in a good way. You can cover all the syllabus because both are common in both prelims and GATE. And if you get time, you should also go for general awareness, like science this covers a very much important portion in general awareness, 100 marks. So you can go for that. Even environment, geography, that are also scoring portions. And you need to also go through the aptitude portion. Very, very much recommended aptitude. Okay, so thank you so much for sharing your strategy for GATE regarding GATE exam. And I can see some students are asking questions. So एक बार हम discuss कर ले पूरा strategy like for GSI also. आप लोग question पूछ सकते हो, ठीक है? Okay, so now we'll come to the UPSC GSI portion. उसकी क्या strategy है? Because अभी वही exam है in a month. So please share your strategy. And जैसे कि अभी भी अगर बच्चे दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ गेट एज वेल एज जीएसआई, तो कैसे उसे टैकल कर सकते हैं? सो प्लीज शेयर योर स्ट्रैटेजी एज वेल। सो ये लास्ट मंथ इज वेरी क्रूशियल। तो ये लैब का प्रिपरेशन का लास्ट लेग है। आपने ऑलरेडी आपका मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड कर लिया है, आपने बहुत POSQs कर लिए होंगे, आपने टेस्ट सीरीज भी चालू कर दिया होगा दोनों का ही। तो सी अभी आपको होप नहीं हारना है। लाइक दिस इज अ क्रिटिकल फेज, यू नीड नॉट सी योर मार्क्स एंड फील डाउन, क्योंकि टेस्ट सीरीज का मार्क्स उतना ज्यादा वेटेज नहीं कैरी करेगा, आपको आप कॉन्फिडेंस कैरी ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन दिस लास्ट मंथ व्हाट यू कैन डू, for gate also, for GSI also, what I am telling, for gate what you have to do, you take a random PYQ questions, okay। जैसे मान लीजिए आपने 2017 का आपने क्वेश्चन पिकअप कर लिया, आप एक टाइमर सेट कीजिए 3 घंटे का। आप मतलब जैसे सीबीटी होगा, दोनों में एक ही डिफरेंस है, जैसे गेट में सीबीटी होगा और उसमें ऑफलाइन होगा। तो आप क्या कीजिए, अपने लैपटॉप में क्वेश्चन आप चला लीजिए गेट का, और एक रफ कॉपी लेके बैठ जाइए, 3 घंटे का टाइमर सेट कीजिए, आप सॉल्व कीजिए वो क्वेश्चन 3 घंटे में, एप्टीट्यूड प्लस जियोलॉजी दोनों एक साथ। फिर 3 घंटे बाद सॉल्व करने के बाद आप चेक कीजिए उसको कि आप कितना ला पा रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर दैट मतलब 90 प्लस क्रॉस करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, आपने इतना प्रैक्टिस करा फिर भी आपके पास डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई मोस्टली रिकमेंड यू कि आप वो जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये गेट के लिए भी यूजफुल है, और आपका जीएसआई का जियोलॉजी सेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो मेनली प्रीलिम्स का जो जियोलॉजी सेक्शन है, उसका एक खास बात यह है कि आप अगर उसका सिलेबस देखोगे और उसका क्वेश्चन पैटर्न देखोगे, ईच टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा, और ऐसा सजाया हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको कि आपने मान लीजिए इग्नियस पेट्रोलॉजी आप चेक कर रहे हैं क्वेश्चन, तो 10-15 क्वेश्चन आपको इग्नियस पेट्रोलॉजी का ही मिलेगा।
तो इतना अच्छा सॉर्टेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको कोई खुद से आपको तकलीफ करना नहीं पड़ेगा कि आप उसको सॉर्ट करो फिर प्रिपेयर करो। तो लाइक दैट यू कैन प्रिपेयर जीएसए प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑल्सो, दोनों एक साथ हो जाएगा, बस टाइम लेकर प्रिपेयर कीजिए। तो सर जैसे कि लाइक 1 मंथ में मॉक टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो आपने कितने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे एंड कैसे उसे एनालाइज किया था? सी मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, लेकिन जैसे मैंने बताया, मैंने वो जैसे सी कोई भी मॉक टेस्ट परफेक्ट रेप्लिका नहीं होगा आपका मेन राइट। एग्जाम का। सो राइट। प्रीवियस क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइक मॉक टेस्ट। आप प्रीवियस क्वेश्चन को आपका लाइक गॉड फादर जैसे देख सकते हो, उसको आप सॉल्व कीजिए 3 घंटे में। फिर आपको अगर फिर भी सेटिस्फेक्शन ना मिले, आप मॉक टेस्ट दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉक टेस्ट से आप खुद को चेक कर सकते हो कि ठीक है मैं इतना इतना स्कोर कर रहा हूँ, लेकिन उसको जजमेंटल हिसाब में मत लो कि यही मेरा मार्क्स आएगा, मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। दैट्स नॉट इट। आप अच्छा स्कोर करोगे, बस अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवाइज करो। रिवाइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस रिवीजन। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस। आपका ये 1 महीने के लिए शेड्यूल आपका ये होना ही चाहिए कि सुबह उठो, आप फ्रेशन अप हो, उसके बाद आप जो फॉर्मूला आपने लिखा है फॉर्मूला को आप पूरा रिवाइज करो, उसके बाद आप करने बैठो। आपका कोई भी मॉक टेस्ट ले लो या फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो 3 घंटे, फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ो, फिर ये रिपीटेडली करते जाओ। मतलब कॉन्फिडेंस आपका ऑन होगा ही पूरा, विल बी एग्जाम भी आपका अच्छा होगा। ओके, सो लाइक इसका मतलब कि सोर्सेज को हमें लिमिटेड रखना है एंड बार बार उसे उसी चीज को सेम चीज को एग्जैक्टली। रिवाइज करना है। ओके। लास्ट मंथ में आपको सोर्स वेरी करके आप खुद कंफ्यूजन में आ जाओगे, तो नो नीड। यस। कोई आप जो भी फॉलो कर रहे हो, आपका अगर जो नेसेसिटी है वो सफाइस कर जा रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड। यू नीड नॉट टेक अदर रिसोर्सेज इनटू अकाउंट राइट नाउ। जस्ट जितना भी आप पढ़ाई किए उसको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो अभी। ओके, सो अभी तक लाइक जितने भी हमने स्ट्रैटेजी सेशंस कंडक्ट किए हैं, तो स्टूडेंट्स को हमेशा जीएस को रिलेटेड बहुत ज्यादा डाउट होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटीज होती है रिगार्डिंग द जीएस पेपर, द पेपर 1। तो लाइक आपने कैसे उसे लाइक टैकल किया था या फिर उसे स्टडी किया था एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हाँ मतलब जीएस पेपर इज रियली ट्रिकी, बिकॉज आपको जियोलॉजी में जितना एफर्ट नहीं लगेगा, जीएस में ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। बट द थिंग इज, वहां पे भी एक ट्रिक है। आपने कट ऑफ में देखा होगा, कट ऑफ के एक छोटे से जगह में लिखा होगा कि 15% ही चाहिए उसमें क्वालिफाई करने के लिए। तो डेट वॉज इन माई माइंड कि आई डिड नॉट गेट इनफ टाइम टू स्टडी फॉर जीएस पेपर। आई डू नॉट रिकमेंड ऑल्सो आप लोग पढ़ो जीएस, मैंने उतना पढ़ाई नहीं कर पाया जीएस, लेकिन आई हाईली रिकमेंड यू टू स्टडी इफ यू हैव टाइम। आई डिड नॉट गेट द टाइम टू स्टडी जीएस दैट मच, बट दैट लाइन वॉज इन माई माइंड कि मेरे को 100 में से 15 चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तभी मेरे जियोलॉजी का पेपर चेक होगा। तो इन ऑर्डर टू सिक्योर द 15 मार्क्स, लाइक कितना होता है 0.8 के आसपास शायद, इफ यू करेक्ट वन क्वेश्चन एंड यू विल गेट 0.8 मार्क्स। तो उस हिसाब से आपको शायद 30 क्वेश्चन के आसपास तो मतलब करेक्ट करना होगा। तो उतना सा ही मेरे माइंड में था कि मेरे को 20 से 21 भी 25 भी आ जाएगा तो चल जाएगा। मेरे को जियोलॉजी में ज्यादा मैक्सिमाइज करना है स्कोर। सो ओके। आई ओनली फोकस ऑन साइंस। साइंस जैसे स्कूल में सही था, तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका फोकस किया, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट यूट्यूब से देख लिया था, और साइंस से एनसीईआरटी का बेसिक बुक्स थोड़ा बहुत फॉलो किया था। दैट्स इट फॉर जीएस। डोंट टेक मच स्ट्रेस फॉर जीएस। आप अगर वहां पे 16 मार्क्स लाके यहाँ पे 200 प्लस लाते हो, तो आपका टोटल हो जाता है 216 या फिर 220। दैट्स इट, बहुत अच्छा स्कोर होता है वो। इवन इन माई केस आई गॉट आई केस 21 मार्क्स इन जीएस, बट बाकी मैंने जो स्कोर किया है वो जियोलॉजी स्कोर किया है, 216 शायद मैंने स्कोर किया है जियोलॉजी सेक्शन में। ओके। ओके, तो जियोलॉजी में कैन यू टेल लाइक आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, या फिर आपका फेवरेट जो जियोलॉजी में बेसिकली, सो व्हाट वाज योर एंड व्हिच टॉपिक यू डिसलाइक्ड एंड व्हिच वन वाज योर फेवरेट, यू प्रेफर्ड टू स्टडी दैट वन? एक्चुअली डिसलाइक तो भी मतलब ज्यादा कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन पैलेंटोलॉजी थोड़ा बहुत मतलब आई राइट। अच्छा नहीं लगता था। लाइक माय फेवरेट टॉपिक वाज इंजीनियरिंग जियोलॉजी, आई लव्ड इट। उसके नेट ओके। सॉल्व करने में बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, तो आपने लाइक सारे टॉपिक्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया था फॉर द जीएसआई, या फिर कुछ आपने छोड़ा हुआ था एंड कुछ आपने ज्यादा फोकस किया हुआ था? नहीं, एक्चुअली जीएसआई का जो सिलेबस है दैट इज मोर और लेस सिमिलर टू जैम। जैसे गेट का जो राइट। एक्स्ट्रा पोर्शंस है, जैसे जियो फिजिक्स वहां पे नहीं आते।
तो यू कैन लाइक कैरी ऑन विथ योर बेसिक प्रिपरेशन ओनली, मतलब ज्यादा फोकस, मतलब अगर आप गेट के लिए पढ़ते हो तो यू फोकस ऑन जियो फिजिक्स जियो केमिस्ट्री मच। बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको पता ही होंगे, तो वो आपका अगर बेसिक रेडी है स्ट्रक्चरल जैसे, क्योंकि आएंगे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सुनने आएंगे लेकिन वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जीएसआई में। It's like MSQ only. You get four statements and you have to think like A is correct or B is correct. That takes time actually because सीबीटी में जैसे हो जाए आप क्लिक करते हो आगे बढ़ जाते हो, बट यहाँ पे तो आपको ओएमआर भी फिल करना होगा, वहाँ पे भी टाइम Right. कंज्यूम होगा। तो 120 क्वेश्चंस इन लाइक आई गेस 2 hours is not enough ना। So you have to like be accurate and be fast with that also। आप करो प्रिपरेशन, दोनों के लिए करो, जीएसआई प्रीलिम्स के लिए, मतलब मैं तो सेग्रीगेट नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मैं सेग्रीगेट नहीं कर रहा हूँ। आप एक साथ ही Okay. प्रिपरेशन करो, बट यू नीड टू बी एक्यूरेट एंड योर मिनिमाइज योर टाइम। जैसे आप मान लीजिए 120 क्वेश्चंस पे 60 क्वेश्चन कर लिए, जैसे मेरा स्ट्रेटेजी था कि मैंने 60 क्वेश्चन करा, उसके बाद मैं ओएमआर करने लगा, उसके बाद फिर 60, तो वैसे करके आप टाइम मैनेज कर सकते हो। Okay, so like 2023 में जैसे कि like you have reached the mains stage या of the GSI examination and this was your second attempt probably. Okay, यस यस। so like तो please tell the students like कैसे आपने उस जो phase था वो जो 23 and 24 में you must be very much anxious and all of those things, तो उसको कैसे आपने tackle किया? इस 2023 में आई वाज इन माय फाइनल ईयर इन एमएससी ड्यूरिंग माय खड़गपुर। सो Okay. उस टाइम गेट का ज्यादा क्रेज था, मतलब अपने होगा तो इन अच्छा, स्पाइट ऑफ okay. हैविंग 200 सीट्स वी आर मोर फोकस टुवर्ड्स गेट। बट Okay. आफ्टर लाइक बाद में जब गेट में थोड़ा सा बहुत डिस्टरबेंस हो गया और रैंक छिटक गया, तब लगा कि नहीं, मतलब जीएसए में फोकस करना चाहिए था। तब Okay. प्रीलिम्स भी हो चुका था। अब गेट का जो नेगेटिव इफेक्ट था, मतलब पोस्ट ट्रॉमा जो था, वो जीएसआई के प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका था कि ज्यादा हमने Okay. अटेम्प्ट नहीं किया था, मैक्सिमाइज नहीं कर पाए थे स्कोर। और इसीलिए Okay. मेंस में मैं जैसे भी प्रिपरेशन था मेंस में मैं देने गया था, लेकिन ओवरऑल में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप मतलब किसी एग्जाम अगर खराब होता है उसको कैरी ऑन नहीं करो दूसरे एग्जाम में, आप भूल जाओ। दूसरे एग्जाम तक, yes. यू हैव टू मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन। और मेंस मेंस में नहीं होने के बाद तब मेरे रियलाइजेशन यही था कि आई नीड टू फोकस ऑन बोथ इक्वली। तो Right. दैट वाज द कोर ऑफ माय प्रिपरेशन कि दोनों इक्वली फोकस करो, और जियोलॉजी तो है तो फोकस एक से पढ़ो। ओके, तो लाइक मतलब अगर कोई एक एग्जाम नहीं होता है तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं नहीं करना है सोच नहीं के करना क्यों है। नहीं हुआ वगैरह। जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक एग्जाम ही है। तो यस, तो लाइक जैसे कि आपने बताया प्रीलिम्स के बारे में, राइट? योर प्रीलिम्स गॉट डिस्टर्ब्ड इन द जीएसआई या एग्जाम। तो 2020 या लाइक फॉर गेटिंग द रैंक इज प्रीलिम्स मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू मेंस, द मार्क्स ऑफ द प्रीलिम्स? सी एक्चुअली मेंस में सभी लिखेंगे, बट प्रीलिम्स यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर। वो जो ओके। 1-2 मार्क्स का डिफरेंस होता है वो प्रीलिम्स से ही आता है। आपका ये जो रैंक में डिफरेंस आ रहा है, या फिर आपके जो 1 मार्क से किसी का अगर नहीं हुआ, या फिर 10 मार्क्स से नहीं हुआ, वो प्रीलिम्स की वजह से होता है। प्रीलिम्स मैक्सिमाइजेस योर स्कोर वेरी मच। अगर आप प्रीलिम्स को अच्छे से देते हो, और यू कैन प्रेडिक्ट इट ऑल्सो आफ्टर आफ्टर गिविंग प्रीलिम्स। बहुत जियो डेस्टिनेशन और बाकी कोचिंग भी निकालते हो आप लोग, 3-4 क्वेश्चन अगर टैली करोगे, आपका मार्क्स निकल के आ जाएगा, मोर और लेस प्लस माइनस 10 ही होता है वो स्कोर। राइट। तो वो अगर आपको समझ में आएगा कि प्रीलिम्स अच्छा हुआ है, तो मेंस ऑटोमेटिकली आप ज्यादा एफर्ट दोगे और अच्छा भी होगा वो मेंस। तो हम्म। इसीलिए प्रीलिम्स यू नीड टू मैक्सिमाइज स्कोर। जस्ट कीप इन माइंड कि आपको जियोलॉजी तो फोड़ना ही है, ऊपर से आपको जीएस भी फोड़ना है। तो जितना हो सके आप जीएस करो, जियोलॉजी आपको मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा। 200 प्लस स्कोर इज मस्ट, क्योंकि अभी सीट्स कम हो रहे हैं, अभी आपका राइट, कट ऑफ तो ज्यादा होंगे। कंपटीशन ज्यादा होगा, राइट। होंगे ऑलरेडी 188 शायद इस बार का कट ऑफ था, अभी इस बार तो शायद सीट और भी कम हो गए, तो यू कैन एक्सपेक्ट 190 ऑल्सो कट ऑफ दिस टाइम। You can expect. ओके। So you need to be very to in a safe side. You need to score 200 plus. Right. Okay, so so Shobik, now we have some questions. So now the like field is open for all. You can ask questions to sir जो भी आपके doubts हैं. And already we have some questions in the chat box.
book as such books aptitude के लिए तो follow you can follow like there is a book from physics वाला for aptitude that is a good book जो कि ना compilation करता है previous years का for practice that is more than enough and you can go through YouTube lectures also the gate वाला एक channel है वहाँ पे वो लोग aptitude का एक free course offer करते हैं तो वो भी एक अच्छा course है I would recommend you also হ্যালো, yeah দাদা বলবো না স্যার বলবো? it's fine you can দাদাই ঠিক আছে আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি আমি এবার গেটকে একটু ফোকাস করছি। আচ্ছা, আমি মাইক অন করে বলছি, কোনো অসুবিধা নেই তো, নাকি আমি চ্যাটে বলবো? हाँ you can बट शायद अदर व्यूअर्स भी बंगाली नहीं होंगे तो यू कैन टॉक इन हिंदी और इंग्लिश वट एवर यू लाइक ओके ओके ओके। एक्चुअली मैं इस बार गेट को फोकस कर रहा हूँ जीएसआई से पहले। तो एक्चुअली मेरा वो स्पेशल जो डाउट है वो 15 मार्क्स का जो पार्ट है, वो पार्ट है एप्टीट्यूड। है एप्टीट्यूड বা জিএস, মানে ওই বিষয়, ওই उस पार्ट में मेरा कुछ मेरा वीक, मोस्ट वीक। सो जियोलॉजी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो एप्टीट्यूड में कहीं से प्रैक्टिस तो कर रहे होगे ना प्रैक्टिस में गेट वाला जो आपने बोला वही मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या प्रैक्टिस करूँ, मैं स्कोर अच्छा नहीं आता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो प्लीज प्लीज एप्टीट्यूड इज नॉट इन योर हैंड्स ठीक है एप्टीट्यूड एक बहुत लाइक डायनामिक चीज है मतलब यू प्रैक्टिस एंड यू कैन सॉल्व एटलीस्ट अगर तुम कॉमन तो तुमको आएगा ही नहीं कुछ भी इन एग्जाम अगर कुछ भी तुम्हारे फेवर में आ जाए तो एटलीस्ट क्योंकि ऐसा चीज है ना वहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल क्वांट तीनों एक साथ आते हैं 15 मार्क्स में अब इंग्लिश थोड़ा बहुत तुम कर पाओगे इजीली उसके बाद तुम्हारा आता है जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा लेकिन वो क्वांट में थोड़ा बहुत वो लोग प्रोबेबिलिटी या फिर थोड़ा बहुत हाई लेवल भी दे सकते हैं सो 15 में से मतलब इवन इफ यू स्कोर 10 और 11 दैट विल बी नाइस मार्क्स इन एप्टी ट्राई टू स्कोर 10 प्लस प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस से और क्या ही बोलो मैं प्रैक्टिस के अलावा कुछ कर नहीं सकते हो तुम उस सेक्शन में यू कैन ओनली प्रैक्टिस एंड होप दैट थोड़ा इजी क्वेश्चन आ जाए एप्टीट्यूड में How many questions should be at least attempt in GSA prelims? So in geology section, I guess you have 300 marks and 120 questions. So आपको ऑलमोस्ट 90 तो करेक्ट करने ही होंगे 100 के बराबर अटेम्प्ट तो रखना होगा आपको जियोलॉजी सेक्शन में 100 इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट क्योंकि 200 प्लस आपको स्कोर चाहिए तो 100 अटेम्प्ट होगा कुछ प्लस माइनस होगा तो आपका रह जाएगा 200 प्लस स्कोर अगर आप कम अटेम्प्ट करोगे 200 प्लस क्रॉस ही नहीं करेगा फिर एंड मैंने जैसे बताया आपको जीएस सेक्शन में आपका 15 जैसे कट ऑफ रहेगा तो उस अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो जैसे मैंने तो फुल क्वेश्चन स्क्रॉल मारे थे 120 क्वेश्चंस की कौन से मेरे को आते हैं तो मतलब 15 मार्क्स मैंने पहले स्कोर कर चेक कर लेते हैं हाँ दिस आई एम कन्फर्म 15 आ जाएगा उसके बाद अगर सरप्लस आपको 80-90% आते हैं अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो नहीं तो फिर रिस्क लेने का जरूरत नहीं क्योंकि अगर वो कटेगा तो फिर आपका यहाँ पे 105 106 कोई भी कर लो आपका नहीं आएगा मतलब कट ऑफ क्रॉस नहीं करेगा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे उससे बेटर है आप वहाँ पे सेफ साइड करके यहाँ पे मैक्सिमाइज करो 100 तक Is Mrinal Shrestha and PYQ is more than enough for NAT in GATE? Yeah, Mrinal Shrestha is a very good book. आपको वो टॉपिक वाइज आपको वो मिल जाएगा लाइक कौन सा फॉर्मूला और क्या फोकस करना है PYQ से आई थिंक इट इज मोर देन इनफ कॉन्सेप्ट रेडी करके PYQ सॉल्व करो मृणाल श्रेष्ठ से वो बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा थैंक यू स्थिति प्रजना So, preparing with this hectic schedule in IIT Kharagpur is hard, but what do I say? You need to cover up, na.
along with course curriculum, I know it is very difficult. We are in the previous curriculum. आपका तो फिर चेंज हो गया अभी करिकुलम और ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, बट फर्स्ट ईयर में और ज़्यादा है, लेकिन सेकेंड ईयर में यू विल गेट टाइम टू मैनेज. आपको फिर वो लूप होल्स खोजना पड़ेगा कि कौन सा क्लास में आप जाके कर सकते हो, कौन सा में आप बंक मार सकते हो. तो वैसा करके आपको वो प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपका कंपटीशन के लिए. What was your score in prelims 24? In prelims 24, I guess the overall score was 238, and in prelims 23, it was 165 around. In GS paper, I told you, no, 15 marks is the cutoff. So less than that, it is risky, and higher than that, how much, even if you score, that is safe for qualifying the cutoff. Sometimes even if the GS paper comes hard, the cutoff can lower to around 10 also, 10 marks. So accordingly, but you need to keep 15 marks in your mind. 15 is the cutoff for GS section. So more than 15 is a good score. How to minimize negative marking in GS? So don't do any like guesswork. That's what I would say. Guesswork से आप नेगेटिव खा सकते हो, तो जितना श्योर हो उतना ही करके आओ कि आपका 15 क्रॉस हो जाए बस. और अगर आप श्योर हो तभी दो, या फिर बेकार गेस वर्क करके आप नेगेटिव खा गए तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका स्कोर घट जाएगा. और Yes, Aryan, you want to ask any question? Aryan, please mute yourself. Okay. Yes, sir, continue, please. any more questions? For geophysical parts in resource geology, you can there is no some book ready-made book कि आप resource के साथ geophysics compilation में मिले. लेकिन वो जो Musset and Khan बोल के एक book है, that is very much good for geophysics. You can use that for geophysics method also, and you can combine that with S.K. Haldar. That is a good book for exploration as well as that geophysical methods. Does IIT students get advantage in interview? कौन सी वाली, GSI वाली? ऐसा कुछ नहीं है. IIT स्टेट कॉलेज सभी एक जैसे है, इंटरव्यू सबके लिए सेम ही है. Negative marking, actually I do not remember, but I guess in geology section I attempted around 104 to 5 question, and it was, I think 90 to 95 questions were correct. So बाकी नेगेटिव हुए थे मेरे भी, एंड जीएस में मैंने नेगेटिव कम खाए थे उसमें. Paleontology was my weak portion, as I have already told. तो पैलेंटोलॉजी में मैंने वैसे भी क्वेश्चन छोड़े थे प्रीलिम्स में. जितना हो सके मैंने ट्राई किया था, जितना आता है मेरे को उतना ही करना. तो what was your approach for MSQ part? That's where most of us get stuck and got negative. बट MSQ में तो नेगेटिव नहीं है ना गेट में? MSQ के लिए क्या है, मतलब यू नीड टू
लाइक ब्रश योर कॉन्सेप्ट्स एंड आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा पॉसिबिलिटी से कि चारों ऑप्शन में से आप हर एक ऑप्शन को चेक करो कि इसमें कौन सा एक मतलब हो सकता है कि इस कंडीशन में ये ना हो। लाइक हाँ, मतलब एक ऑप्शन को आप चेक कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, फिर एमएसक्यू में से हर ऑप्शन आप चेक कर रहे हो, हर ऑप्शन में आप पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हो कि ये कौन से कंडीशन में ट्रू नहीं होगा। तो अगर आपको मिल जाए तो आप उसको सिलेक्ट मत करना, बाकी आप सिलेक्ट करके आ जाओ। तो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी फॉर एमएसक्यू। So, how did you manage the 2 hours time for GSI prelim geology paper? It's 120 questions. So, how did you manage the time? Like, या did टाइम you? मैनेजमेंट वाज बिट हेक्टिक फॉर मी आल्सो कि आप पहले 120 क्वेश्चंस में से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें से भी यू गेट दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली ना, लाइक 4 ऑप्शन रहेंगे, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको वो क्वेश्चन में केयरफुल होना पड़ेगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा बर्डन जो है आपको ओएमआर भी फील करना पड़ेगा, दैट इज टेडियस, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। So what I did, I divided the paper like 60 questions मैंने करे, तो मैं श्योर था जिसमें उसमें से मैंने OMR ऑलरेडी भरना चालू कर दिया, नहीं तो फिर लास्ट में मैं OMR नहीं भर पाता। अगर यू गॉट द क्वेश्चंस करेक्ट बट इवन इफ यू डू नॉट फिल योर OMR यू वोंट गेट मार्क्स ना। सो यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि आप क्वेश्चंस करते जाओ, OMR भी भरते जाओ, दोनों को एक साथ आपको करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई वुड टेल यू। I mean, before the exam, I mean, while giving marks, did you, I mean, fit to the time, 2 hours? Did you practice that kind of marks? Like, No, actually for GSA prelims, I did not appear for any like designated mock for GSA prelims. So even if you want, you can check your time. Like you take out a previous year's question paper and like 2 hours आप अपने timer alarm में set कर लो, and you can just take a rough sheet and practice accordingly. but the thing is, the bubbling is consuming time, like that thing. या लाइक अब क्या कर सकता है वो एक्स्ट्रा करके OMR तो शायद मिलता होगा, यू कैन ऑर्डर OMR ऑनलाइन एंड वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप, बट Okay, sir. Thank you. और क्या। Adesh, any questions or हाँ सर, आई थिंक चैट बॉक्स में है क्वेश्चंस। any book for questions apart questions के लिए previous year's questions only I followed. Any specialized book I did not follow for questions. Screenshot slides हाँ मैं वो भेज दूंगा admin को, I will send the book list and all the syllabus for admins, they will share it with you. एनी अदर क्वेश्चंस और कोई डाउट है किसी को, आप पूछ सकते हो सर से। बी फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, आराम से पूछ सकते हो आप। Approach for GS, see personally I जीएस got में सबको बहुत ज्यादा डाउट्स है। जीएस तुम लोग उतना ज्यादा मतलब अगर टाइम मिले करो, लेकिन अपने दिमाग में भर मत लो कि जीएस के अलावा यू कैन नॉट क्वालिफाई लाइक GSI. GS is only constituting 100 marks and the like win-win ratio is very less. You get to solve 120 question for 100 marks and you get for each question I think you get 0.8 marks. So even not without on not also one complete marks and negative कितना 1/3 उसका 0.25 नेगेटिव हो जाता है। सो आपका ध्यान में क्या रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको पता नहीं होगा तो आपको ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा ना। तो जीएस दिमाग में इतना भर लो कि 15 क्वालिफाइंग है, 15 के ज्यादा क्वालिफाइंग जाता ही नहीं है कभी भी यार। 15% मार्क्स इज क्वालिफाइंग फॉर जीएस, अभी आपका सेकंड पेपर चेक होगा। तो इन दैट केस कैसे हम 15 मार्क्स ला सकते हैं? तो आप एक साइंस में फोकस कर सकते हैं, क्योंकि दिस एग्जाम इज फोकसिंग ऑन साइंस, दिस इज नॉट लाइक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आपका साइंस से क्वेश्चन आएंगे ही,
आप फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तीनों थोड़ा स्ट्रांगली प्रिपेयर करो। आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन कॉमन मिलते हैं, हाई स्कूल क्लास 10 या फिर कभी कभी क्लास 11 से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यू कैन सॉल्व दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी कभार जियोग्राफी में, क्योंकि जियोग्राफी जियोलॉजी से थोड़ा बहुत कॉमन है, तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम जियोग्राफी ऑल्सो एंड इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो ये 5 सब्जेक्ट मैंने टारगेट किए थे। यू कैन ऑल्सो टेक 5 सब्जेक्ट इन अकाउंट, एंड डेफिनेटली अगर आप 5 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए, 15 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। Right. What is your rank in JAM? I think it was 37 rank. I solved a PYQ motivated target. Very good. Check it out. Now giving mock test. Okay. सी PYQ से तुमको एक ट्रेंड का तो आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि तुमने मल्टीपल टाइम सॉल्व किए है। ट्रेंड वेरी भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर मतलब नेट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन अचानक से 2024 में क्या किए वो लोग नेट्स को थोड़ा सा घटा के वो लोग MSQ पे ज्यादा जोर दे दिए। वो लोग बहुत सारे MSQ पे क्वेश्चन डाल दिए थे, तो वहां पे स्कोर घट गया, सबका स्कोर घट गया था स्कोर, क्योंकि MSQ अगर तुम आता है तो फिर यू कैन स्कोर 2 मार्क्स, बट एक भी ऑप्शन अगर गलत हो जाता है तो फिर 0 आ जाते हैं, तो वहां पे मार्क्स घट जाते हैं। तो स्पेसिफिक कोई ट्रेंड नहीं है, बट कुछ तो तुमको हिंट्स मिल जाएंगे कि हाँ दिस टॉपिक इज ऑफ मोर वेटेज और ये आ ही सकते हैं। जैसे 25 मार्क्स से तुमको जियो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे ही वहाँ पे, तो यू नीड टू बी वेरी थॉरो विद जियो फिजिक्स को पार्ट इन द 25 मार्क्स पोर्शन। बाकी कॉमन सेक्शन में इंजीनियरिंग जियोलॉजी, फिर ये अप्लाइड जो पोर्शंस है, हाइड्रोलॉजी और ये remote sensing, that are very much that can be asked from that portion, geochemistry। बाकी कोर पोर्शन जैसे स्ट्रक्चरल और मेटामॉर्फिक वो तो आते ही हैं। मैं अप्लाइड पोर्शन से आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि नेट्स वहां से ज्यादा बन सकते हैं। डोंट वरी, यू विल गेट थ्रू। जैसे अच्छे से आपको खुद को कॉन्फिडेंट बनाए रखो, हो जाएगा इस पर। Yeah, for geophysics, like I followed Masat and Khan, looking into the earth, and for numerical portion, like in concise form, that mineral system book is there, so both is very much handy. You can take into account, but both book. Baki Lowry, Lily, other also follow, but that is pretty much hard in my like language. Sort of hard है मेरे लिए, so I prefer Masat and Khan. That is a very good book. Any more questions? तो सर लाइक जैसे कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आपके वैसे क्या हॉबीज थे, बिकॉज 24/7 ऑब्वियसली यू कांट स्टडी, तो व्हाट वर योर हॉबीज अपार्ट फ्रॉम लाइक रिक्रिएशन के लिए? हाँ, जैसे मतलब खड़गपुर में जब हम लोग थे तब वी यूज टू प्ले टेबल टेनिस, तो हम लोग बीच में टेबल टेनिस खेलने चले जाते थे। और बाकी घर में आने के बाद तो स्ट्रेस की वजह से निकल ही नहीं पाते थे। ओके ओके लाइक बिकॉज घूमना चाहिए लोगों को। ओके तो लाइक बिकॉज मतलब स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ हमेशा हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल एक्टिविटी भी आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट ऑल्सो एज कम, लाइक पढ़ाई को बिल्कुल बराबर टक्कर देते हुए फिजिकल एक्टिविटीज आई थिंक ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। या इट कीप्स योर माइंड एक्टिव, आपको खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स करना चाहिए, तो ठीक रहता है। नहीं तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो फिर आपका पढ़ाई में भी थोड़ा फोकस लॉस्ट हो जाएगा ना। यस It is not enough. That's why I'm telling you to follow that Masad and Khan book. The theory is very good in that book. Uh,
तो डोंट टेक दैट मच स्ट्रेस, आपको वहां से फॉर्मूलाज मिल जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो मिल जाएगा मिनरल सिस्टम से। अगर आपको बेसिक आपको जानना है जियो फिजिक्स में, आप मसरत खान फॉलो कीजिए या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए। अगर आप कहीं पे भी एनरोल हो, आपका सिलेबस करिकुलम में अगर लाउरी फॉलो किया जा रहा है तो वो फॉलो कीजिए जो आप कंफर्टेबल हो। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो फॉलो किया आप वो फॉलो कीजिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो फॉलो कीजिए। अलॉन्ग विद दैट, to practice questions, I am suggesting you to like go through mineral system. That's a very good book. No, no, I have not enrolled in PhD. Yeah, during actually I prefer preparation in group. During my preparation in Kharagpur also, first attempt, we had a group. So after that, when I came to home during the 2024 preparation, so everyone got job and I was stuck alone. So I need to, they could not manage time to prepare with me. So I did prepare alone also. दोनों ही मैंने किए, ग्रुप के साथ भी अकेले भी। इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड जियोकेमिस्ट्री विच बुक? इंजीनियरिंग जियोलॉजी के लिए आप जैसे बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो तो मिनरल सिस्टम में दिए हुए हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगा। और जो डैम्स टनल्स होते हैं वहाँ पे सुबिनॉय गंगोपाध्याय का एक बुक है, वो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आपका क्लास नोट्स जो आप पढ़ते होंगे वहाँ पे। जियोकेमिस्ट्री के लिए बेसिकली आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए। मतलब अगर थर्मोडायनेमिक्स ये सब देखना है तो विंटर भी देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से चैप्टर में दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स, और आइसोटोप्स भी दिया हुआ है वहाँ पे। और बाकी कुछ कुछ ऐसे स्पेशलाइज टॉपिक के लिए जैसे मीटियोराइट्स या फिर आपका न्यूक्लियोसिंथेसिस, उसके लिए आप वो जो वाइट डब्ल्यू वाइट का एक बुक आता है जियोकेमिस्ट्री का, वो आप फॉलो कर सकते हैं। नेट स्ट्रेटेजी, नेट में मैं एक्सपर्टाइज नहीं हूँ, मैंने नेट के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करा है। आई ओनली प्रिपेयर्ड फॉर गेट एंड जीएसआई ओनली, तो उसी से मैं चला गया था नेट एग्जाम देने, दैट्स ऑल। नो स्पेशल स्ट्रेटेजी फॉर गेट, सॉरी, नेट एग्जामिनेशन। विल यू इलैबोरेट द यूज ऑफ गेट रैंक in case of jobs or even PhD in IITs? How much rank is in GATE is needed to get a fellowship of for PhD under IITs? गेट रैंक से जॉब जैसे पीएसयू में रिक्रूट होते हैं अभी 2 साल से, वो थोड़ा प्रोसेस अभी चल नहीं रहा है। तो जैसे बहुत सारे पीएसयू रिक्रूट करते हैं, और बाकी पीएचडी में तो आई थिंक ओनली दे डू नॉट टेक इनटू अकाउंट रैंक, आई गेस। they just take into account कि have you qualified gate or not, and then they take specialized interview for that position where you are applying. So rank I guess इतना ज़्यादा important नहीं है आपका फेलोशिप के लिए, पीएचडी के लिए। अगर आप एमटेक में अप्लाई करते हो तो फिर आपका रैंक के हिसाब से आपका शायद वो काउंसलिंग होता है, दैट्स ऑल। Any more questions? I think sir has already shared all the strategies very elaborately. बहुत अच्छे से. Okay, so we have another question. Okay. Did you prepare separate notes for GATE and GSI? No, no, no. Why should you prepare? Like prelims के लिए तो दोनों ही एक ही है ना, तो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए, बुक से आप अपना नोट्स सॉर्ट कर लीजिए, क्योंकि इन दिस लास्ट 1 month यू विल नॉट गेट टाइम टू रीड द होल बुक। तो आप वहां से अपना जितना जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, आप सेपरेट नोट्स बनाइए, और कॉन्सेप्ट तो आपका सेम ही रहेगा ना गेट या फिर जीएसए, तो you go through that notes, but in later process during the mains you need to prepare separate note for that. Like you need to practice, not note. आप ये नोट बना लीजिए, अभी आपको समरी हो गया एक, वो समरी से आप दोनों गेट और जैसे आराम से दे सकते हो अभी प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए अलग से वो स्ट्रेटेजी वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। What are you willing to do after this experience for last 1 month? आफ्टर दिस क्या, अभी जॉब मिल गया है 1 साल बाद, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चिल करेंगे, घूमने जाएंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग आएगा फिर ज्वाइन कर लेंगे। एस्पायरेंट्स को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अपने प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस रखिए, मतलब होप मत लूज कीजिए। आपको सबका टाइम आएगा, आप लोग का भी टाइम आएगा। मतलब लास्ट ईयर मैं भी तो आपके ही फेज में था ना, तो लो फेज जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड,
बट आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो होल्ड करके रखना है, पेशेंस होल्ड करके रखना है, होएगा। मतलब आप करते रहिए, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। दिस ईयर माइट बी योर ईयर, सो ऑल द वेरी बेस्ट। यस, बस लगे रहना है सबको। Is MTech is really worth it through GATE Geology? अगर आप MSc ऑलरेडी कर लिए, आई डोंट थिंक MTech विल बी एनी बेनिफिट। आपका एक्स्ट्रा एक डिग्री होगा एंड दैट्स इट। लाइक आप अगर मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने कर घुसे थे MTech में, तो दे जस्ट गो टू MTech टू लाइक प्रिपेयर फॉर GATE और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओनली। Economic geology is still left. From where can I do? It prelims main. प्रीलिम्स में जैसे इकोनॉमिक में तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और प्रोसेस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभार आपका मिनरल्स मतलब इकोनॉमिक मिनरल्स ज्यादा आते हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। और उसके लिए आप कोई भी उमेश्वर प्रसाद बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर मैंने एक बुक एक संजीव मेहरा की एक बुक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो स्लाइड। वो बुक बहुत कॉन्साइज बुक है, वो आप फॉलो कर सकते हो। प्रोसेस के साथ बहुत कुछ दिया हुआ है उसमें, पूरा कोल जियोलॉजी, न्यूक्लियर और बाकी मिनरल्स का भी दिया हुआ है। यू कैन फॉलो दैट बुक। सर आई कुड चलिए, हाँ मैं आपको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम। ठीक है, मैं वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपको। आप ग्रुप में हो ना? और कोई क्वेश्चन? হ্যালো। হ্যাঁ, অ্যান্ড স্যার আমি প্রথমে কংগ্রেচুলেট করতে ভুলে গেছিলাম, আমি ডাইরেক্ট কোশ্চেনে জাম্প করে গেছিলাম। অ্যান্ড বিগ কংগ্রেচুলেশন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ফর্মালিটিস, ঠিক আছে, করবে না, কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ। ओके, सो आई थिंक वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस। तो सर ने सब कुछ इतने अच्छे से इलैबोरेटली एक्सप्लेन कर दिया है, ऑल द स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग। सो विल वाइंड अप द सेशन। एंड Okay. थैंक यू सो मच सौविक सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे, हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए, एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करने के लिए एंड स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। एंड अगेन आपको भी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ एंड ऑल द वेरी Thank you, बेस्ट टू sir. ऑल द एस्पिरेंट्स आल्सो। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट एस्पायरेंट्स। आप अच्छे से GSI दीजिए, गेट दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ओके, थैंक यू सो मच सर।